दफ्तर जिला लोक संपर्क अफसर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ जिला प्रशासन ने NDRF ਦੇ सहयोग ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ SDM ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 15 ਦਸੰਬਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ NDRF ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस मॉक ड्रिल विच जिला प्रशासन अधिकारियों तो इलावा फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन, सेहत विभाग आदि ने हिस्सा लिया। इस संबंधी वधेरे जानकारी दिंदे हुए SDM मनफी इक्सरीटी बैनिथ ने दस्सिया कि जिला प्रशासन वालों जिले विच किसी अणसुखावी घटना होने ते इस दे बचाव लई ये मॉक ड्रिल की गई है। उन्होंने दस्सिया कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह ਦੀਆਂ कुदरती आफतां जिवें कि भूचाल आदि तो लोगों की जान नूं बचाउणा है। उन्होंने दस्सिया कि किसी भी अणसुखावी घटना होने ते प्रशासन वालों सब तो पहला फायर ब्रिगेड अते पुलिस नूं सूचित किया जाता है अते इस तो इलावा नेड़े दे स्कूल विच रात कैंप स्थापित किया जाता है। उन्होंने दस्सिया कि ये रात कैंप विच जख्मी हुए लोगों नूं पूरी डॉक्टरी सहायता अते खाण पीण दा प्रबंध भी किया जाता है। इस मौके NDRF दे डिप्टी कमांडेंट श्री ऋषि महाजन ने दस्सिया कि इस मॉक ड्रिल विच NDRF दे 35 जवानां वल्लों भाग लिया गया है अते ये सारे जवान किसी भी घटना नाल नजिठण लई पूरी तरह निपुण हन। उन्होंने दस्सिया कि साडी बटालियन जिले विच किसी भी अणसुखावी घटना नूं रोकण लई जानकारी मिलदे ही 2 घंटे दे अंदर अंदर पहुंच जावेगी अते बचाव दा काम शुरू कर देवेगी। इस मौके सर ओंकार सिंह DSP, सहायक सिविल सर्जन डॉक्टर अमरजीत सिंह, नगर निगम दे सेहत अधिकारी डॉक्टर योगेश अरोड़ा तो इलावा वख-वख विभागां दे अधिकारी भी हाजिर सन। कैप्शन जलियांवाला बाग विखे NDRF ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕਾਕਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। सेफ्टी अफसर से रिपोर्ट दी कि जी अंदर जो मलबे डब्बे विक्टिम कट रहे हैं तो हमने लेकिन फाइनल बिल्डिंग की जाएगी तो शायद हो सकता है मलबे के ऊपर ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 7ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਮੋਚਨ ਬਲ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। अभी आप देख सकते हैं इस तरीके से रेड रेस्क्यू टीम की मदद से नीचे हो जाते हैं उसका डेमोस्ट्रेशन अभी आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले NDRF के रेस्क्यूअर्स करना तू रोक लो वीडियो नहीं बनाता मैं। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਂਕਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਆਰਾਮ ਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੋਪ ਰੈਸਕਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾ ਰੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜੀ NDRF ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਰੋਪ ਰੈਸਕਿਊ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ NDRF ਸਿੰਗਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਪਰ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚੋ।
आ गई। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਡਰਸ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਾਇਰ ਵਾਲੇ ਰੈਸਕਿਊਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਰਿਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪੜੋਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਅਰੈਸਟ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਾਇਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਗੀ ਬੈਂਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਤਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਮੋਚਨ ਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਬੂ बांधी जा रही है। बाकी आप देख सकते हैं टीम क्योंकि वो चल नहीं पा रही है महिला और उससे इस तरह उठाकर दो जो महिला करती है वो ले जा रही है। ਅਸੀਂ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੂਰੇ UN ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਸੀਗੀ NDRF ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। तो बेसिक SOP फॉलो करनी जो NDRF वालों जो शुरू हुई NDRF अपनी जो डिप्टी कमांडेंट साहब वालों की है कि ये कार्रवाई इन केस ऑफ अर्थक्वेक सिचुएशन असी सिमुलेट की सी। अर्थक्वेक के दौरान इन्हों की प्रोटोकॉल होनी है साड़ी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वालों पुलिस ते फायर ब्रिगेड ते सेहत विभाग होगी वो सारे मौजूद से इन्हों की अपनी SOP बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के तहत। तो आप जो है बेसिकली यही करने की इन केस ऑफ एमरजेंसी सिचुएशन रिस्पॉन्ड किए करनी बस। काफ़ी ऊँची बिल्डिंग है। हाँ जी फायर टेंडर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वो लिफ्टिंग की काफ़ी दिक्कत आती है। लिफ्टिंग की है जी जो मैनेजमेंट प्लान बन गई है हर एक फायर ब्रिगेड की अपनी अपनी रिसोर्सिस होंगी एक तो वड्डी व्हीकल होगी छोटी व्हीकल होगी ये अपनी मेजर प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट होगा ये तहत इन्होंने रूट प्लान बनी होगी। तो इन केस ऑफ कोई भी अपनी मोन्यूमेंट होगा जितने कोई इंसिडेंट आ गई तो अपनी रूट प्लान बनी हुई अपनी रिसोर्सिस भी बनी होंगी तो वो तहत कार्रवाई करेंगे। सर जैसे महिला जो मुलाजिम उनका क्या रोल होता है? महिला मुलाजिम मतलब नहीं मुलाजम के रोल यही होते हैं कि महकमे की अपनी मुलाजम की अपनी रोल है महिला और पुरुष का कोई डिफरेंसेस नहीं है। सर अपना बिल का
मेरी रिक्वेस्ट है एसडीएम साहब को बुला लेंगे। सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसा मैंने पहले बताया कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जलियांवाला बाग, और आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाई जा रही है। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में जो पूरे देश भर में हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस जो रखती हैं, उन वहाँ पे जो है अलग अलग तरह से अलग अलग स्थान पे अलग अलग सिनेरियो के ऊपर मॉक एक्सरसाइज की जा रही हैं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेके। क्योंकि ये हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स होने के साथ साथ यहाँ पे क्या है, पब्लिक एट अ टाइम बहुत मौजूद रहती है। तो कोई अगर हादसा हो जाए, कोई डिजास्टर हो जाए, तो वहाँ पे जो इमीडिएट यहाँ के देख रेख करते हैं एएसआई वाले या ट्रस्ट वाले या इवन सिविल पुलिस जैसे यहाँ पे तैनात है, तो ये सबको कोऑर्डिनेशन इनको पता होना चाहिए कि डिजास्टर को रिस्पॉन्ड कैसे करना है और जिससे कम से कम नुकसान हो पाए। इसलिए जलियांवाला बाग में जो है आज एक्सरसाइज की गई है। ऐसे ही अलग अलग जगह पे और भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट नहीं है, नहीं, सफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट के हिसाब से हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, अपने कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या आपने रोप रेस्क्यू टेक्निक्स देखी, या विक्टिम लोकेशन हुआ है, जो टेक्नोलॉजी है दिन ब दिन बदल रही है, दिन ब दिन इसमें एडवांसमेंट आ रही है, और ये जो है सारा इसमें अपडेशन चलता रहता है, इसमें टेक्निक्स में, ट्रेनिंग में और इक्विपमेंट में। सर अपना नाम डिप्टी कमांडेंट ऋषि महाजन। सर लोगों को अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए इस टाइम? लोगों को अपने बचाव के लिए जी हम जैसे जैसे कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, सिविल प्रशासन भी करता है, एसडीएम साहब हमारे साथ हैं, तो स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, बच्चों को भी बताया जाता है और कम्युनिटी में जाके भी बताया जाता है। मॉक एक्सरसाइज भी की जाती हैं, उसमें अलग अलग टेक्निक्स बताई जाती हैं। अर्थक्वेक, अब जैसे बचपन से हम देख रहे हैं अर्थक्वेक, हम भी जब डिजास्टर रिस्पॉन्डर्स नहीं भी थे, अर्थक्वेक जब आता है तो कहते हैं कि या तो लीन टू पोजीशन में हो जाओ, मतलब कि आपको कहीं वी पोजीशन मिल रही है दीवार के साथ, या आप किसी ठोस टेबल या पिलर के नीचे आप वो जगह ले लें आप, जिससे कि आपके ऊपर कोई लोड ना गिरे। अब पता है आप सबको, वही सेफ्टी टेक्निक्स जो हैं पब्लिक ये कर सकती है। काफ़ी ऊंची इमारतें हैं। हाँ जी। ऐसा इंसिडेंट होता है किसी ऊंची इमारत का, तो वहाँ पे कैसे रेस्क्यू किया जाता है? आपको दिखाया अभी कटिंग टेक्निक्स होती हैं। पहले तो जो सरफेस विक्टिम्स होंगे, जो सामने दिख रहे होंगे या जो इजीली अप्रोचेबल होंगे, उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो गए या फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हो गए या एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई, सबसे पहले उनको निकाला जाता है। उसके बाद सर्च एंड लोकेशन टेक्निक्स हैं जी। फायर और हमारे फायर ब्रिगेड से उनके पास इतना है ही नहीं है, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, या इतनी फायर नहीं, फैसिलिटी नहीं है। हमने तो देखा जी अभी उनके पास था इंस्ट्रूमेंट, बाकी फायर डिपार्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैं तो बता नहीं पाऊंगा उसके बारे में। फायर